Hello everyone. So in the previous lecture, we have studied about LSTM, the entire architecture, the equations, working of long short-term memory, along with the advantages and disadvantages of LSTM. And in today's lecture, I am going to implement LSTM. Okay. So here you see a code. I prepared it on Kaggle. So when you create a notebook, this part of a code is already available with you. Okay, fine. After that, from here, my main code starts. Since we are working with deep learning, so I require a framework. Therefore, I am using TensorFlow. Okay, so import NumPy as NP, import TensorFlow as TF. I am going to create a sequential model. Okay, though it is recurrent in nature, but your model will be sequential. The main thing is here you are including a layer called as LSTM, which you haven't imported previously. Long short term memory. We are already having a layer named with this. Okay, and then the next one is a dense layer, which you already know. So what the long short term memory will do, it will interpret your sequential data. It is having three gates: input gate, output gate, forget gate. Will start from the forget gate, then the input gate, and then the output gate. Okay, and how they work I already explained you. So all the lectures which are being done on RNN and LSTM are very much important for you to understand. Okay, here the next thing is I need to create a sequence. So my project is my this particular code is to identify what is a next term or next number in a sequence. Same kind of code we have done in case of RNN. Okay. Similarly, I am following up here in the LSTM. So I will be having a numbers from 1 to 100. Okay. With this, I will make a model to learn, which is having LSTM layer. And then I will try to have a prediction. What will be the next number after 100? That's what I am going to do. Okay. So here a sequence is created that will be an array of 1 to 100. See, range 1 to 101 means last number is excluded. Okay, fine. So let me share my entire screen now, and wherever I feel necessary, I explain. Okay, so every step I will explain here. Okay, so you are creating a sequence. My problem statement I already told you that if you are available with the numbers from 1 to 100, and if you ask a model to identify what will be the next number in a sequence, that's what my problem statement is. Okay, so here at the moment you are creating a sequence of these numbers only. That is an array, and you are going to write like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 100. This is your sequence. Okay, and then what is the next part of the code? It is saying I have to prepare a data. Okay, and I am considering here a mini sequence of 5 numbers. Okay, so this is your entire sequence. Okay, entire.
All right. However, now what I will do is I will create mini sequence. Okay, that means I decided that let's take a sequence of 5 numbers. Okay, and the prediction will be a number which comes after that. So if I take a sequence, that is the first sequence, 1, 2, 3, 4, 5, the next number will be 6. Then if I take another sequence, 2, 3, 4, 5, 6, another, the next number in a sequence will be 7. If I take another sequence, 3, 4, 5, 6, 7, the next number will be 8. So what I'm going to do is I'm making this all as x and this as y. So I will give this sequence as an input to the model and I will give this as output to the model. So model will learn, okay, हाँ 1 2 3 4 5 के बाद 6 आता है, ये मेरे को मॉडल को सिखाना है. आई वॉन्ट अ मॉडल टू लर्न दिस थिंग. And it's not new to you. I have already explained this part of concept in RNN. Okay. तो आप ये एक्स और वाई बना रहे हो, इनपुट और टारगेट बना रहे हो. ओके, अब आप ये कोड देख लो, बड़ा इजी पाइथन कोड है. ओके, देखो. अ मेथड इज क्रिएटेड, क्रिएट डेटा सेट, क्योंकि अभी हमें डेटा सेट ही बनाना है, सीक्वेंस एंड टाइम स्टेप्स. Okay, obviously, na, from RNN only, na, you learn this concept of time steps. Okay, so sequence and time steps. At the moment, X and Y, both input and output, both are empty list. Okay, these are the list, they are empty. Now, for I in range, length of the sequence. Length of the sequence, what is the length of the sequence? This is my original sequence. The length is 100. So length of the sequence is 100. 100 minus time steps. How many time steps you are going to take? How many time steps you are going to take? Here it is said, okay, I need to create 5 numbers. So 5 time steps. So listen, how this thing will go. This is your sequence number 1. At time step t equal to 1, 1 will go as an input. At time step t equal to 2, 2 will go as an input. At time step t equal to 3, 3 will go as an input. At time step t equal to 4, 4 will go as an input. At time step t equal to 5, 5 will go as an input, और यहां पर आपका सीक्वेंस खत्म हुआ. फिनिश. ओके, तो आपका फर्स्ट सीक्वेंस इज ओवर एंड द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड. सो आपका ये पूरा सीक्वेंस आपने दे दिया एंड द आउटपुट विल बी 6. ठीक है, ये काम खत्म हुआ. एंड देन पिकअप अनदर सीक्वेंस S2. टाइम स्टेप t इक्वल टू 1 पर 2 जाएगा एज एन इनपुट. ओके, टाइम स्टेप t इक्वल टू 2 पर 3 जाएगा एज एन इनपुट. टाइम स्टेप t इक्वल टू 3 पर 4 जाएगा एज एन इनपुट. ओके, एंड देन टाइम स्टेप t इक्वल टू 4 पर 5 एज एन इनपुट. t इक्वल टू 5 पर 6 एज एन इनपुट. सो दिस योर another sequence is accepted, complete हुआ. The output is 7. So this is how in the code we are writing that, okay, length of the sequence is 100, time step is 5. 5 है ना, हम 5 का sequence लेकर चल रहे हैं. Time step is 5. Okay, so 100 minus 5 is 95. Okay, so 100 minus 5 is 95. Okay, so for I in range of 95, okay, x dot append sequence I colon I plus time steps. Let us suppose you are starting, obviously वो I का जो वैल्यू है वो आप स्टार्ट कर रहे हो कहाँ से? ओके, फ्रॉम 1. ओके, फ्रॉम 1.
तो 1 to 95. Okay, so append I: plus time steps. तो I plus टाइम स्टेप्स कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द टाइम स्टेप्स? यहाँ पर 5 है, 5 टाइम स्टेप्स. सो व्हाट वी आर डूइंग, x dot append I colon I plus time steps, which is 5. Okay, so that will be like, if I say I का वैल्यू 1 है तो 6, और यहाँ 6 को एक्सक्लूड करो आप, और नहीं तो इफ आई एम गोइंग टू टेक I इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल I 0 से शुरुआत करें. ऑल राइट, सो x डॉट अपेंड 0 कोलन I प्लस 0 प्लस 5, दैट विल बी 0 कोलन 5. ओके, तो वो मैं नहीं चाहता हूं कि 0 से शुरू हो मेरी जो बातें हैं. ठीक है, तो बातें जो शुरू होंगी वो 1 से लेकर 5 तक जाना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाट आई वांट. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पर 1 कोलन 6 से 6 को एक्सक्लूड करें. सो 1 to 5 दैट विल बी माई इनपुट. ओके, एंड आउटपुट क्या है? व्हेन द सीक्वेंस इज ऑफ फ्रॉम 1 to 5, द आउटपुट इज I प्लस टाइम स्टेप्स, यानी 1 plus 5, that is 6. Okay, that will be my output. Okay, so y dot append. Okay, then here it is said I. Okay, I plus time steps. Okay, straightforward. Plus time steps. तो टाइम स्टेप्स आपकी 5 हैं, तो 1 plus 5 ये आ जाएगा 6. सो आपका आउटपुट है 6 और इनपुट है 1 to 5. दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट द डेटा. ओके, तो यहां आप देखें, आपका डेटा क्रिएट होगा. आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ द सीक्वेंस माइनस टाइम स्टेप्स, यानी 5 है, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस 100 है तो 95 है. सो 1 to 95 ये चलेगा 1 to 95. ओके, और जैसे ही 95 तक तो ये चल गया. ठीक है, तो आई का वैल्यू जब 95 होगा तो आई प्लस टाइम स्टेप्स यानी 96, 97, 98, 99 और 100. ठीक है, और 100, क्योंकि आई का जो लास्ट वैल्यू होगा वो 95 होगा यहाँ पे. एंड हियर आई नीड टू अपेंड टिल व्हाट, कहाँ तक लेके जाना है मुझे? टिल जो है आई कोलन आई प्लस टाइम स्टेप्स. ठीक है, तो 95 कोलन 95 प्लस 5, दैट विल बी 100. ओके, and then here it is y dot append sequence I plus time steps. ओके, तो आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिलेगा y के केस में. दैट विल बी द आउटपुट. ओके, सो द लास्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा देखें यहाँ, व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर? आई प्लस टाइम स्टेप्स. यहाँ पर क्या मिला मुझे रिजल्ट? व्हाट द रिजल्ट आई गॉट फ्रॉम हियर? देखिए, सीक्वेंस तो क्लियर तो बन रहा है, और आपको मैं प्रिंट भी करवाऊंगा सीक्वेंस. ये देखिए, ये रहा 1 2 3 4. अभी तो बना, बोल के भी बता दिया था ना, अप टू 6. कहाँ तक बना ये? टिल वेयर द सीक्वेंस इज क्रिएटेड, ये यहाँ तक 99 तक हो गया. वो मैंने बोला था ना, 95, 96, 97, 98, 99. ओके, तो हियर ठीक है, इस तरीके से आप देखें 5 का जो है हम लेकर चल रहे हैं. ओके, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा 99 तक का आई एम गेटिंग. सो 95, 96, 97, 98, 99 ये 5 हो रहे हैं. ओके, नॉट 100, ये 5 हो रहे हैं. आउटपुट विल बी 100. y वाला टर्म इस केस में 100 होगा. ओके, बिकॉज 95 प्लस 5, दिस थिंग.
Okay, 95 plus 5, that will be 100. So output y will be 100, and this will be from 95 to 99. Okay, this is how it will go. So we are starting from this one. Okay, so this is the way you are going to create a data set, and it's very easy. आपको दिख रहा है यहाँ, समझ में आ रहा है, very easy python code. Time steps I'm taking 5. It's up to me. This is the easiest case of the time step. It's up to you. आपको 10 का लेना था तो आप 10 का भी ले सकते थे. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट को प्रिडिक्ट करते आप. फाइन, इट्स अप टू यू, जितना भी आपको लेना है. ओके, द इजी थिंग विच आई टुक हियर इज 5. ओके, I printed x. I could have print y also. The result will be from 6 to 100. ओके, वो रिजल्ट आ जाता 6 to 100 का रिजल्ट आ जाता इफ आई प्रिंट वाई हियर. लेकिन सिर्फ एक्स प्रिंट करा मैंने, कोई इशू नहीं है. एंड देन ये आपका डेटा बन गया. नाउ यू आर हैविंग दिस डेटा. ओके, ये एक्स एंड वाई, input and output, now you are having. Now you can give it to the model, but you are having LSTM layer. And LSTM layer do treat the data in a sequential way. It do accept data in a sequence, and you have created a sequence right now, and your sequence doesn't need any padding. Okay, already your sequence is numerical in nature, so there are certain steps which we are ignoring at the moment. Okay, your sequence first of all is already an integer, a numerical value, so we are not going to convert it into the numerics. Second, we are not going to do like any padding because your sequence is already completed 5 each. Okay, so there is no scarcity. So few steps we are ignoring at the moment. However, when we will deal with the text, then we will do something. Right now, okay, I'm not ignoring this thing. Okay, so अब यहाँ आपको क्या करना है, ये देखिए. You have to reshape x. You have to make the x in that particular format which is accepted by the LSTM layer. So x इक्वल टू x डॉट रीशेप. तो ये x डॉट शेप यानी कि योर इनपुट, x dot shape y यानी कि output shape 1, that is output, and the number of feature here is 1. Okay, only one feature is there. Okay, only this feature x is present. एक ही feature है आपके पास. तो shape 0, that is the number of samples, that means the number of rows. X dot shape 1, that is the time steps, 5 time steps. Okay, and 1 is the feature. Okay, so in this you have to convert your x. Fine, this is your x. Okay, this is your x. However, you have to convert it into in this particular format. Remember, very mandatory. So this will be the number of samples. So x is 0. How many samples are there? You can count. Okay, this is first, this is second, this is third. Okay, so obviously till 95. So there are 95 samples are present. 1 to 95. So there are 95 samples. And what is the time step 5? So 95 comma 5 comma 1, that will be the x dot reshape. So 95 samples, 5 time steps, and only one feature is present. Okay, fine. Mandatory step. And then you can build your model. So model equal to sequential, and add LSTM layer. The number of units, it's up to you how much you want to add. At the moment, I am adding 50. Okay, so 50 units, 50 neurons I'm adding to the LSTM layer. Activation function I'm taking ReLU. Input shape I already like time steps comma 1. This is the input shape. Time steps comma 1. That means 5 comma 1. Okay, so in a sequence there are 5 numbers. So these 5 numbers will be completed. Your input, first input is over. Then the next again 5 will be given as an input over, and so on. So input shape is 5 comma 1. Okay, and at the dense layer I'm going to have only one neuron. One I'm keeping to produce the output, just to show the output. Okay, so this is your LSTM layer. You have to remember few things.
Okay, how to add a layer and what features, what parameters I need to put in that particular layer. Okay, fine. Then you can compile your model. I took Adam Optimizer, loss equal to MSC, metrics equal to MSC because this is a regression problem. Okay, and here I trained my model with 100 iterations, 100 epochs. Verbose is to keep the track of the iteration steps. Okay, that means the values or the log files. Okay, not mandatory, just I kept this parameter verbose equal to 0. Okay, training has been done. After that, what I did is I want to predict the next number in a sequence. That means my model got trained now. Okay, and then when I give an array 96, 97, 98, 99, 100, I reshape it into this format. That means there is only one sequence, 5 times step, one feature. So this is my input, reshape it, and let my model to predict what is the answer. That means this is my test input. Let my model to predict what is the answer. And the prediction what I got from this LSTM is 101. Obviously, after 100, 101 will come. So this is the next number in a sequence. It's up to you. Okay, it's up to you. You can take any five numbers and you can ask the model from the model that what will be the next number in a sequence. Okay, your model got trained. It understood that. You are giving five numbers in a sequence and you are asking me what is the next number in a sequence. तो ट्रेन हो चुका है और आपको ऐसा आंसर देगा. देख लीजिए 101 आ रहा है. अब वो थोड़ा तो एरर आएगा कुछ 101.0077. तो ओके सम पार्ट ऑफ द एरर इज accepted. This is machine learning, but you can understand that your model knows कि अगला नंबर 101 आएगा. Okay, so this is a basic example for LSTM to predict a next number in a sequence. The more important one to predict what is the next text in a sequence. That means what is the next word in a sequence. That is the main code. Okay, just like we did in RNN also, here also this gives importance. Okay, so again I took the libraries NumPy, TensorFlow, but you very well know that few things are common. Okay, to convert text into sequence, few things are common. If you are available with the text, I already explained multiple times. This is your text. You have to first tokenize the text, then you have to give numerical or integer annotation. Okay, integer annotation to the text or the tokens which are present in the text. Already you have tokenized. That means you have splitted each and every word. So give numerical annotation to them or integer. For example, if I write my name is Nirmal, my name is Nirmal. So my is one, Nirmal name is two, is three, and Nirmal is four. This is how it will annotate numerical value. Okay, this is a step number two. Step number three is you have to convert the text into sequence. Just I did converted द नंबर इन अ सीक्वेंस. वो 5 5 का सीक्वेंस बनाया था ना ऊपर अभी इंटीजर का, वही वैसे ही काम है, सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है और फिर उसकी करना है पैडिंग. ओके, इतना काम करना है. ये 4 स्टेप्स परफॉर्म होंगी. फिर एक और स्टेप है 5, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग. दैट टू आई एक्सप्लेन. ये आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए. I explained all these things in my previous lecture, and that will be as same as you are going to do any kind of code in RNN, LSTM or whatsoever. And see, check here. तो मैंने क्या करा है, ये देखिए, टोकनाइजर भी इंपोर्ट करा, पैड सीक्वेंसेस भी इंपोर्ट करा, एम्बेडिंग लेयर भी आई इंपोर्टेड.
सो दीज आर द प्री प्रोसेसिंग, ये टोकनाइजर और पैट सीक्वेंसेस ये तो प्री प्रोसेसिंग है, एम्बेडिंग लेयर है. एंड यू वेरी वेल नो व्हाट एम्बेडिंग लेयर डू, वेक्टराइजेशन. ओके, सो आपको याद होगा वो किंग और क्वीन वाला एग्जाम्पल, मेल फीमेल वाला एग्जाम्पल. सो दैट्स व्हाट एम्बेडिंग डू. Okay, high dimensional data to low dimensional data. Okay, so these are the fundamentals you have to understand about the text, that how text is analyzed by a machine. We have gone so far, but unless and until you don't know the basic math, there is no sense. Okay, अभी देखिए आपको एक टेक्स्ट दे दिया है यहाँ पर. Deep learning is a subset of machine learning in artificial intelligence. Deep learning algorithms model high level data patterns using neural network. This is the text. You have to follow the steps which I just told you recently. Take the tokenizer and convert text into tokens. For that, I am going to use a method called as fit on text. You very well know RNN में भी यही use करा था. Same I used in RNN also. Fit on text. Okay. एंड देन जब टोकन बन गए तो आपको पता चल जाएगा टोटल वर्ड्स कितने हैं. तो लेंथ ऑफ द टोकन +1, वो इंडेक्स के हिसाब से ना 0 से चालू होता है, तभी उसने +1 कर रखा है यहाँ पे. ओके, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज वाई +1 हैज बीन डन. ओके, सो टोकनाइज करिए और काउंटिंग करिए आपके टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हैं. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 आएगा इसका आंसर. सो टोटल वर्ड्स आर 22. ओके, तो फिट ऑन टेक्स्ट आपने करा तो पहले इसको टोकन्स करे. ओके, फिट ऑन टेक्स्ट कर दिया यानी उसका न्यूमेरिकल अनोटेशन कर दिया. टोकन एंड न्यूमेरिकल अनोटेशन ये दोनों काम हो गया. यानी कि डीप लर्निंग विल बी 1, डीप विल बी 1, लर्निंग विल बी 2, इस विल बी 3, ए विल बी 4. तो टोकनाइजर से क्या होता है, डिक्शनरी बन जाती है. टोकनाइजेशन टुकड़े हो गए और फिट ऑन टेक्स्ट से एक डिक्शनरी बन गई. ओके, एवरी नंबर इज अनोटेटेड विद इंटीजर वैल्यू एंड देन यू हैव टू मेक द सीक्वेंस. और ये कोड आपसे अभी ऊपर ही तो बताया मैंने. सीक्वेंस क्रिएट करो आप. अब आपके पास पूरा की पूरा जो टेक्स्ट है टोकन्स में है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका. ओके, सो यू हैव टू क्रिएट अ सीक्वेंस. Okay, so at the moment let us suppose the input sequence is an empty list. Okay, and then you are applying a loop for line in text dot split. Okay, for line in text dot split जहां भी full stop मिल गया तो समझ लो कि लाइन है और ब्रेक करना है मुझे. ओके, सो यहाँ पर एक फुल स्टॉप है एंड यहाँ पर एक फुल स्टॉप है. ओके, यहाँ पर फुल स्टॉप है. ऑल राइट, एंड देन यू हैव टू. ओके, अगेन यहाँ आप क्या कर रहे हो, उसे सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहे हो. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस. ओके, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, what will be the length of sequence, that's what we have to give. Okay, तो एक काम करिए, for I in range 1 comma length of the token list. So what is the length of the token, how many words were there, 22. Okay, अभी रखिए उसको याद, 22. तो ये लूप लगाया आपने for 1 length of the token list, तो 22 की थी, 1 से 22 तक जाएगा. n ग्राम सीक्वेंस, n ग्राम सीक्वेंस, अच्छा, कोलन I+1. अब अच्छा ये क्या है, आपको पता है सीक्वेंस कैसे बनता है, हाउ द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट इज क्रिएटेड, यू वेरी वेल नो अबाउट दिस थिंग. याद करिए RNN वाला, और ये वही कोड है. ठीक है, इफ यू हैव बीन रिटन अ सेंटेंस लाइक दिस, माय नेम इज निर्मल. सो हाउ द सीक्वेंस इज क्रिएटेड, लाइक दिस, माय my name my name is my name is निर्मल. ऐसा सीक्वेंस बनता है.
इफ यू रिमेंबर माई RNN लेक्चर, और यही बता रहा है वो इन दिस पर्टिकुलर कोड, दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग. So initially, okay, I am talking about for I in range 1 to length of the token. So length of the token तो 22 है, तो 1 से 22 तक जाना है मुझे. I need to go from 1 to 22. मेरा लूप स्टार्ट हुआ, मेरा लूप स्टार्ट हुआ. ओके, तो आपने लगाया फॉर 1 टू 22. अभी आई की वैल्यू 1 है इनिशियली. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर, आई का वैल्यू 1 है, तो कोलन आई प्लस 1. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इनिशियल इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स से चालू करूंगा, कोलन आई प्लस 1. ठीक है, तो 0 + 1 यानी कि 1, यानी ओनली फर्स्ट टर्म, पहली वाली टर्म जो है वो सीक्वेंस के अंदर आएगी, ओनली फर्स्ट. फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी. ओके, सो कोलन 2, तो दैट मीन्स 2 वर्ड्स विल बी एडेड इन अ सीक्वेंस, अगले सीक्वेंस में. सो दिस इज योर सीक्वेंस नंबर 1, दिस इज योर सीक्वेंस नंबर 2, दिस इज योर सीक्वेंस नंबर 3, 4, ऐसे 3 एंड 4 ऐसे जाएगा. सो one term will be added in a sequence. Kindly remember my, okay, go through my RNN. One term will be added in a sequence. Then next will be colon 3, then next will be colon 4 and so on. यही बोल रहा है कोड के अंदर वो, ऐसे ही चलता जाएगा और आप उनको अपेंड कर रहे हो, सीक्वेंस बनता चला जा रहा है. ओके, सो इफ यू आर अवेलेबल विद द टेक्स्ट एंड इफ समवन आस्क यू दैट, ओके देखो भाई ये मेरा टेक्स्ट है, ओके, इसको आपको सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है. यदि आपसे कोई ऐसा बोले कि ये मेरा टेक्स्ट है, उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, आप बोलोगे देखिए 1 by 1 होता है. द फर्स्ट सीक्वेंस विल बी अ वर्ड, another sequence will be word, then the next word, then another sequence will be word, word and word, next word, and the last will be my name is Nirmal. ये पूरा एंटायर सीक्वेंस अब यहां पर खत्म हुआ. ओके, तो ऐसे बनेगा वो. ठीक है, ये बता दिया मैंने, ऐसा सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है. ऑब्वियसली जो लास्ट वाला सीक्वेंस होगा उसमें एंटायर वर्ड्स होंगे. द लास्ट सीक्वेंस, द लास्ट सीक्वेंस will have will have entire words. ऐसे होगा वो. ओके, फाइन. तो ये सीक्वेंस क्रिएट होगा यहां से. ये कोड है पाइथन का सिंपल टू क्रिएट अ सीक्वेंस. और मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑब्वियसली द मैक्स. मैंने क्या बोला, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, वो 22 होगी. आप चाहो तो निकाल लेना, मैक्सिमम लेंथ 22 होगी. जितने वर्ड्स हैं सीक्वेंस के अंदर उतनी लेंथ होती है. दैट विल बी द मैक्स लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस. बस इतना ध्यान देना, वो यूनिक वर्ड्स ले रहा, रिपीटेटिव नहीं लेगा, वो यूनिक है ना. अब जैसे कि यहाँ डीप लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर रिपीटेड, सो इट विल कंसिडर द यूनिक वर्ड्स. ओके, इट विल कंसिडर द यूनिक वर्ड्स. तो जितने यूनिक वर्ड्स होंगे दैट विल बी द मैक्स लेंथ. ओके, और आपको क्या करना है भाई, मेरे को सारे सीक्वेंसेस को तो बराबर बनाना है. आई नीड टू मेक ऑल द सीक्वेंसेस इक्वल. ओके, सो यही हमने टेक्स्ट के अंदर ये इसमें करा था इन नंबर, दैट एवरी सीक्वेंस इज ऑफ 5 टाइम्स स्टेप था. बट अभी यहां पर हमें इशू हो रहा है. क्या इशू हो रहा है, द फर्स्ट सीक्वेंस इज हैविंग ओनली 1 word, another sequence is having 2 word, another sequence is having 3 word, another sequence is having 4 word. मेरे को सबको बराबर बनाना है. तो मैंने क्या करा, आई आइडेंटिफाइड व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस. किसी भी सीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ क्या है वो मैंने आइडेंटिफाई करी, वो ये है. तो 4 है, जैसे मान लो अभी मेरे एग्जांपल में 4 है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू ऐड और आई विल बी डूइंग द पैडिंग. मुझे बिट्स ऐड करनी है, बिट्स आई नीड टू ऐड. हर सीक्वेंस में बिट्स ऐड होंगे, यानी कि जो आपका पहला वाला सीक्वेंस है माय, उसका जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, वट एवर बी द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, वो लिखा जाएगा.
एंड देन व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस? 4 है, तो 0 0 0 30 लगा दो। तो अब ये देखो, ये 4 की लेंथ का हो गया। योर नेक्स्ट सीक्वेंस इज ऑफ माई नेम। तो माई नेम ये उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, माई का और नेम का। अभी 2 डिजिट्स बच गए, 0 0 लगा दो, लो ये भी 4 का हो गया। S3 जो कि थर्ड सीक्वेंस है, वहां लिखा था आपने माई नेम इज, तो 1 2 3 एक 0 और लगा दो, लो सीक्वेंस 4 का कंप्लीट हो गया। एंड देन चौथा वाला है माई नेम इज निर्मल, ये तो वैसे ही कंप्लीट था, 1 2 3 4। ओके, ये देखिए, ये आपके पास अब आप समझ गए क्या कलाकारी हुई है। नाउ यू गॉट हियर इज दैट ऑल द सीक्वेंसेस। देखिए देखिए, टेक्स्ट तो एंटायर सीक्वेंस था, वो तो एंटायर था। मैंने मिनी सीक्वेंसेस मेरे को बनाने हैं, मतलब इस तरीके से मैंने डिफाइन नहीं करा कि कितने लेंथ का होगा। ओके, फ्रॉम माय साइड वो तो जो मैक्सिमम लेंथ है, द मैक्स लेंथ, दैट मीन्स द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट, उतने लेंथ का जो सीक्वेंस है। ओके, बाकी सभी को भी सेम लेंथ का आपको बनाना पड़ेगा। तो ये पैडिंग करिए, मैंने ये पीछे करी है। ओके, इट्स अप टू यू, यू कैन परफॉर्म प्री पैडिंग एंड द पोस्ट पैडिंग, ये आप कर सकते हैं। प्री एंड द पोस्ट, इट्स अप टू यू। अब जैसे मेरे कोड के अंदर यहाँ प्री लिखा है, ओके हियर इट इज रिटन प्री, तो कोई इशू नहीं है। ओनली द चेंजेस, ये जो जीरो मैंने 3 zeros विच आई पुट एट द एंड ना, मतलब 1 के बाद लगाया ना, ये मैं 1 के पहले लगाऊंगा। सो इट विल बी लाइक दिस थिंग, 0 0 0 1, ऐसा हो जाएगा वो। और दूसरे वाले का होगा 0 0 1 2। ठीक है, बस इतना ही है। प्री में आगे 0 लग जाएगा, पोस्ट में पीछे 0 लग जाएगा, लेकिन सबको बराबर लेंथ का कर देंगे अपन, ये काम करना है। सो सीक्वेंसेस में क्रिएट करा एंड पैडिंग कर दी, क्योंकि भाई माय एलएसटीएम लेयर डू कंसीडर सीक्वेंसेस ओनली, सीक्वेंशियल डेटा के लिए बना है, तो सीक्वेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको। ऐसे करते हैं सीक्वेंस क्रिएट। और मेरा आरएनएन वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी फॉलो अप करिए। ठीक है, सीक्वेंस बन गया, एंड देन आई नीड टू स्प्लिट द डेटा। ओके, दैट मीन्स आई नीड टू क्रिएट एक्स एंड वाई, ये मुझे क्रिएट करना है। तो ये क्या है, ये एक्स कॉमा वाई इनपुट सीक्वेंसेस कोलन कोलन -1 इनपुट सीक्वेंसेस कोलन -1, व्हाट दिस मीन्स, क्या है ये? इनपुट सीक्वेंसेस कोलन कोलन -1, व्हाट डज इट मीन? ये ऑल द रोज, और यहाँ क्या कॉलम, कौन सा कॉलम जो है वो फेस कर रहा है ये, व्हाट इट इज फेसिंग, ये और ये वाई क्या है, कोलन -1। तो इनपुट सीक्वेंसेस ये तो, दैट मीन्स व्हाट वी हैव क्रिएटेड द एंटायर, अभी जो बनाया है इसी में से ही बताना है आपको। ओके, चलो वेट करो, मैं लेट मी रन द कोड, आई रन दिस थिंग। ओके, लेट मी रन दिस थिंग एंड शो यू, प्रिंट भी करवा देता हूँ मैं आपको कैसा दिख रहा है वो। ओके, सो यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, सो ये हो गया। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर, कंट्रोल सी, लेट मी शो यू कोड, कंट्रोल वी, ये रहा 20 है ना, वो 22 बोल रहा था मैं तो। क्या है कि रिपीटेड वर्ड्स होंगे तो फिर उसने उसको इग्नोर करते होगा, यूनिक वर्ड्स ले रहा है, जैसे डीप लर्निंग, दीज 2 वर्ड्स आर रिपीटेड, ओवरऑल 22 थे, ये रिपीटेड था तो यूनिक 20 है। ठीक है, मैंने अभी बोला भी था बाद में 20 यूनिक वर्ड्स ही लेगा। और ये सीक्वेंसेस क्रिएट करने वाली बात कही है आपसे मैंने। ओके, फाइन। सो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस, मैक्स लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस, कंट्रोल सी। ओके, ये भी मैं प्रिंट करता हूँ आपको। फर्स्ट लेट मी रन दिस कोड। ओके, बन गया। सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस इज, ओके 11 बोल रहा है, मैक्स लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस इज 11। तो आप देखिए क्या और भी चीजें जो है वो रिपीट हो रही है क्या? मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस इट इज टेकिंग 11। सो लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस फॉर सीक्वेंस इन इनपुट सीक्वेंसेस। ओके, ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज किया है इसने यहाँ पे। ओके, तो पैड सीक्वेंसेस टू सेम लेंथ, हाँ ये हम कर रहे थे। ओके,
इनपुट सीक्वेंसेस में चलो एक चीज और है, पहले मैं इनपुट सीक्वेंसेस भी जरा प्रिंट करवाऊँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये भी दिख लेते हैं। ओके, 11 11th की लेंथ का है, ठीक है, 11 11। अब एक चीज है, यहाँ देखो टेक्स्ट के अंदर, डीप लर्निंग इट हैज बीन रिपीटेड वन टाइम। ओके, और कुछ रिपीट हो रहा है, is a subset of machine learning in artificial intelligence. Deep learning algorithms model high level data patterns using neural network. अच्छा, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे, आपको ये थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात है। देखिए, हमने कोड में क्या कर रखा है कि लाइन बाय लाइन कंसिडर करा है, ठीक है। तो फॉर लाइन इन टेक्स्ट ऐसा कंसिडर करा, एंड वी हैव स्प्लिटेड द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फुल स्टॉप। तो ये 11 है, ये पूरा, ये भी 11 है, एंड आई होप ये नीचे वाला भी 11 है। 11 वर्ड्स है यहाँ पर अभी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 वर्ड्स हैं दोनों सेंटेंसेस में। इन बोथ द सेंटेंसेस आई एम हैविंग 11 वर्ड्स। सो आई एम कंसिडरिंग सेंटेंस, आई एम कंसिडरिंग द एंटायर लाइन, एंड देन आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू अ सीक्वेंस। सो तब जाके वो बोल रहा है यार मैक्सिमम लेंथ किसी भी सेंटेंस की तो 11 है। तो आप जो कह रहे हो, हाँ टोटल वर्ड्स 20 है, उसका हमने मना नहीं करा। टोटल यूनिक वर्ड्स जो है वो 20 है, टोटल यूनिक वर्ड्स 20 है। लेकिन किसी भी सेंटेंस में इन एनी ऑफ द लाइन देर आर 11 वर्ड्स प्रेजेंट, तो हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करा है। ओके, 11 जो हमारे पास आए हैं उनको सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करा है। तो लॉजिक वही है, जैसे कि यहाँ लिखा है डीप। सो फर्स्ट sequence will be deep, then second will be deep learning, third will be deep learning is, fourth will be deep learning is a, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा, एंड देन आपको उसकी पैडिंग करनी। ये देखो पैडिंग करी, सो मैक्सिमम लेंथ इज 11, एंड देन यू डिड अ पैडिंग ऑफ द सीक्वेंस, और प्री पैडिंग करी आपने, यानी देखो 2 1, यानी जो है ये यूनिक वर्ड्स इसमें से निकाल लेगा, और उसका खुद का एक ऑर्डर है उसको रखने का। तो 2 1 3, 2 1 3 4, ओके, जस्ट लाइक 2 1 3 4 5, ठीक है। तो ये 2 1 इस तरीके से कर रहा है अरेंज, वो वर्ड्स को उसने करा, किसको 1 बोल रहा है किसको 2 बोल रहा है, बिकॉज द थिंग इज इन अबाव हियर आई डिड annotated number with the integer. So whatever be the kind of the unique words it considered from your entire text, it annotated it with a numerical value, okay। एंड आगे पीछे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। और जो भी वो डेटा आपको मिला बाद में आपने उसका सीक्वेंस में कन्वर्ट करके एंड देन फिर आपने उसकी पैडिंग करी है, ओके। तो आप ये देख रहे हैं, दिस इज 2 1, देन 2 1 3, देन 2 1 3 4, देन 2 1 3 5 एंड सो ऑन। यहां पर मेरा पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, 11 वर्ड्स वाला। फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड। डीप लर्निंग, ओके, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन एआई। सो यहां पर पूरा 11 वर्ड्स आ गए, और हम इसने शुरुआत 2 2 वर्ड से करी है, सॉरी 2 वर्ड से करिए शुरू, 2 2 से ना 2 से करिए। मैंने खैर आपको बेसिक से समझा दिया, 1 वर्ड वाला माई नेम इज निर्मल वाला, 1 देन माई नेम इज निर्मल, सो दैट आई हैव एक्सप्लेन यू, वो वैसे ही काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीटेड, एंड देन अनदर सेंटेंस, उसके भी 2 वर्ड लिए, फिर 2 1 11, देन 2 1 11 12, 2 1 11 13। तो 2 1, तो जो है 2 1, दैट मीन्स इसने डीप को 2 बोला है, लर्निंग को 1 बोला है, ठीक है। ऐसे चल रहा है ये, इसने इस तरीके से न्यूमेरिकली अनोटेट करा, 2 इज डीप, 1 इज लर्निंग। इस जो है उसको उसने अनोटेट करा है 3 से,
ओके, इसको 3 बोला, अ को अ को 4 बोला, ठीक है? देन सबसेट को 5 बोला। ओके, सो इट इज tagging the words with the numerical value. Okay, how it represented, and then वो यहाँ पर बस उनको लिख रहा है, मेंशन कर रहा है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मेरा सेकंड वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। ये मेरे सीक्वेंसेस बन गए, और यू कैन सी दैट ऑल आर ऑफ लेंथ 11, पूरा कंप्लीट हो गया। एंड देन फिर यहाँ पर आप कह रहे एक्स एंड वाई, सो लेट मी कंट्रोल सी। ओके, कंट्रोल सी, लेट मी रिमूव दिस थिंग, और लेट मी फर्स्ट, ओके, उसको मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एक्स और वाई आपको बता देता हूँ। ओके, लेट मी पुट इट हियर, कंट्रोल वी, आपको पहले एक्स एंड वाई बता देता हूँ कि ये क्या करा इसने। ओके, कंट्रोल सी अगेन हियर ऑल्सो। ओके, ये रहा। व्हाट इज एक्स? ये देखिए, एक्स आपका ये पूरा 11 हुआ, ये पूरा 11 ये एक्स में कन्वर्ट कर, ये पहले भी मैं कह रहा था, दैट इज द एंटायर सीक्वेंसेस। और वाई क्या हुआ? लेट मी प्रिंट वाई ऑल्सो। ये देखिए, वाई क्या हुआ है, ये देखिए 1 3 4 5, ये वाई हुआ, कंट्रोल वी, ये वाई है 1 3 4 5। तो देखिए कैसे ये आ पाया है 1 3 4 5, हाउ? सो ये जो लास्ट टर्म आ रही ना, ये वाली, ये पूरा वाई है। दिस इज 1 3 4 5 6 7 1 8 9 10, दिस इज वाई, यू कैन चेक इट। ये वाई है 1 3 4 5 6 7 1 8 9 10, this is your y, so the last term, that's what it means in a code, ठीक है? So the last value of a sequence is your the word, तभी लिया है। तो कैसे समझाऊंगा मैं इसको? my my यदि इनपुट है तो अगला आउटपुट क्या होगा? my name, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों करा उसने? इफ my, देखिए समझिए बात को, if my is an input, the next word is name. If my name is an input, next word is is. If my name is as an input, next word is निर्मल। So तभी उसने क्या करा है, ये सीक्वेंसेस को नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, ठीक, आपके पास पूरा 11 का सीक्वेंस था, तो उसने उनको पूरे को कंसिडर करा, एंड देन जो y है वो आखिरी वाली टर्म, दिस लास्ट टर्म, उसको y बनाया उसने, ठीक है? आप देख सकते हैं, that's the reason I printed. So this is your sequence, entire sequence, ओके, एंड दिस इज योर एक्स, उसमें से इसने 1 हटा दिया, तो एक्स में 10 टर्म्स हैं और एक टर्म वाई में चली गई। ओके, 1 टर्म इज गिवन टू वाई। ओके, फाइन, ये हो गया। सो इन एक्स 10 टर्म्स आर देयर, ओवरऑल सीक्वेंसेस ऑफ 11, सो 10 टर्म्स आर प्रेजेंट इन एक्स एंड 1 लास्ट टर्म इज प्रेजेंट इन वाई। यहां पर भी इतना पूरा इन एक्स, दिस विल बी इन वाई, this pura in x, this will be in y, this is how it will go। ओके, ये बना दिया, एंड देन आई कन्वर्टेड y। ओके, अब देखो y को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ओके, y को जो कन्वर्ट किया गया है, दैट इज लाइक टू कैटेगरिकल, that means depends upon the total number of words। okay, so the total number of words here are, how many total number of words? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 20 हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 20 हैं ये। ओके, सो आपको इन इन इनका भी एक अरे बनाना है, ठीक है? और अरे विल बी समथिंग लाइक दिस, 20 20 का, दैट मीन्स ये 1 जो है
that will be converted into a length of 20. This will be converted into length of 20. So every number will be converted in a length of 20. तो टू कैटेगरिकल में मैं उनको बना रहा हूँ, और वो भी कैसे, देखिए, 0 1, अब इसका भी ये पहला वाला देखिए, ये 0 1 0 ऑल आर 0, रेस्ट ऑल आर 0, ठीक है। योर नंबर इज 1, तो 1 कहां पर आता है, 0 के बाद 1 आता है, तो उसने उसको 1 बता दिया। देन योर नेक्स्ट नंबर इज 3, तो 3 आएगा कब, 0 1 2 के बाद 3 आएगा, ओके, 0 1 2 एंड देन 3 विल कम, ओके। तो देखो 0 1 2 ये तीनों 0 रहे, फिर यहां पर उसने 1 करा, तो यू हैव कन्वर्टेड this representation into numerical format. That means 0 1 के फॉर्मेट में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जिस पोजीशन पर ये आ रहे हैं उसी पोजीशन पर 1 बनाना है, बाकी सबको 0 करना है। सो दिस एंटायर इज ऑफ 20, this entire is of 20, only the position where this number represents that position will be made 1, rest all are 0। अब जैसे ये 19 है, तो देखो ये, ठीक है, ये देखो ये 19 वाला ये 1 हो रहा है, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई ना सारी चीजें, तो आगे का पूरा 0, ओनली 19th टर्म विल बी 1। दिस इज द वे वी कन्वर्टेड इट इनटू कैटेगरिकल, एंड देन ये आपका आर्किटेक्चर बन गया। इसकी ट्रेनिंग भी कर दी मैंने। अगेन एम्बेडिंग कर रहा हूं मैं, 64 में कन्वर्ट कर रहा हूं, टोटल वर्ड्स आई टुक कन्वर्टेड इट इनटू 64। तो एनकोडिंग होती है, एम्बेडिंग होती है, दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस लेक्चर। LSTM आई एम टेकिंग 100 यूनिट्स या 100 न्यूरॉन्स लेकर चल रहा हूं, एंड डेंस लेयर में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, वो आपके जो यूनिक वर्ड्स उसमें कोई सा भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो आई विल बी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट कुड बी अ नेक्स्ट वर्ड इज, ये निकालना है मुझे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दीज आर 20। ओके, LSTM 100 यूनिट्स आई टुक, इट्स अप टू यू, आपको 50 करना है 50 कर देना, कोई इशू नहीं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कॉमा 64, दैट इज योर, अगेन एम्बेडिंग लेयर में मैं इतने पर इनकोड कर दूंगा, इससे भी छोटा ले सकता था मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कम वर्ड्स हैं, ठीक है। सो इनपुट विल बी मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ -1। व्हाट इज द मैक्स सीक्वेंस लेंथ, 11 है, ठीक है। तो मैक्स सीक्वेंस लेंथ तो 11 है, तो 11 -1 10, सो 0 से 10 तक आप मान लो दैट विल बी द इनपुट लेंथ, तो 10 हो जाएगी। इनपुट 10 का है, आउटपुट 1 का है, ठीक है। तो इससे अपन ट्रेन करेंगे, कंपाइल करा है और रन करा है 100 टाइम्स, ये ट्रेनिंग हो गया, ओके फाइन। और फिर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। अगेन तो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने के लिए यू हैव टू गिव अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट देना है, डीप लर्निंग, तो इसको टोकनाइज करो, न्यूमेरिक्स में बदलो, इसकी पैडिंग करो, फिर प्रिडिक्शन करो, तभी जाके हो पाएगा, डायरेक्ट नहीं होता। सो डीप लर्निंग, एंड आई नीड टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डीप लर्निंग। सो इसने प्रिडिक्ट करा है अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से अल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग अल्गोरिदम्स, ये उसने प्रिडिक्ट करा। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, and this is how your model understand that what could be a next word is in a sequence. Okay, you have to go through this code, you have to go through my previous lectures, previous recordings, previous notes, working, okay, ये ऐसे implement करना है, okay। And then actually yeah, I do have one more example that also I will follow up, no worry, to make you clear again how you can generate a नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस, आई कैन डू दैट। वो बहुत आसान है, एक बार आपके दिमाग में आ जाए ये बात कि क्या कर रहे हैं अपन, चीज़ें बहुत आसान है, फिर आपने यदि मुझे ध्यान से सुना तो कर लोगे। ओके फाइन, लेट मी स्टॉप शेयरिंग।